Good morning, students. So we have done already two chapters from geography. Now we are going to start economics part, first chapter, the story of village Palampur. So economics starts from ninth class. You would have ninth and 10th coverage that we would be taking. First chapter is the story of village Palampur. Now, as we know, our classes are more focused on concept because it is very important, because these points you will study in the senior class in detail. Uh, so we want to be going as to the increases of what exactly is the story about the Palampur and the details of about the village. Rather, we will focus on the concept that lies in the chapter, basically the factors of production, because you all have to read this chapter very carefully. Through the story it has been explained the factors. So any resources which is used to make either goods or services would be a kind of factors of production. There are four factors that we work around, means around which economy rotates. So we will start understanding why and how we can apply the concept of factors of production, how economy works. So this is about the village Palampur. This is well connected with the town, which has upper class family, ST, SC. So you have both kind of houses like kacha house and pakka houses, well electricity connections, and have both type of schools and hospitals like private and government. So the primary key is to understand the factors of production. Now, in India, most of the villages sustained by agriculture as the primary economy. However, there are certain villages which are non-agricultural. So, the idea is to get goods and services. There are four basic factors of production. Okay, so in this part, we will study the four kind of factors. First is land, and second is labor, third is physical capital, and human capital. Physical capital, we also call it capital and human capital also. So first of all, we will discuss about the लैंड. व्हाट इज़ लैंड? सो इन इंडिया देर आर फिक्स्ड रिसोर्सेज. मैं ये नहीं कह सकती कि जो लैंड मेरे पास है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, बट उसी लैंड पर हम प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. सो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लैंड है हमारे पास तो हम आगे अपने काम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. Second is labor. The second requirement is labor. That is people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. अब यहाँ पे जब हम लेबर की बात करें जो मैनुअल भी होते हैं और एजुकेटेड भी हो सकते हैं. Okay, and the third requirement is physical capital, the variety in inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capitals? ठीक है, तो इसमें हम मेंस जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है जो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं. सपोज बिकॉज हेयर्स ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो वी कैन स्टडी हेयर. फर्स्ट जैसे अगर फिजिकल कैपिटल की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे हम human capital, it is like knowledge, skill, individuals has to work around. In physical capital there two basic concept. First is fixed capital, जिसमें आपका फर्स्ट दिया है फिक्स्ड कैपिटल, एंड द सेकंड इज वर्किंग कैपिटल. सो फिक्स्ड कैपिटल इज टू यूज for many years. Suppose I buy tools, machines, like tractors, so it would be fixed because it would be used year after another. Next is working capital, like fertilizers. ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, जो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट, जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो उसी टाइम के लिए,
इस्तेमाल किया जाता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द yarn used by the weaver and clay used by the potter. Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items, जिसे हम सिर्फ उसी वक्त के लिए क्या करते हैं, जिन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं. So this is the kind of concept. One is, first is fixed capital and second is working capital. Now next we talk about land. ठीक है, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, लैंड के बारे में. सो लैंड इज़ फिक्स्ड क्योंकि इट इज़ फिक्स्ड एज कमोडिटी. इन इंडिया विलेजेस हैव 75% लैंड विच इज़ ऑक्यूपाइड इन फार्मिंग. सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर एक्सपेंशन. ओनली वन वे टू कन्वर्ट द वेस्ट लैंड इनटू कल्टिवेबल लैंड. क्योंकि अगर हमें लैंड में कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, अगर हम इसमें कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो वर्क है उसको हम ज़रूर आगे बढ़ा सकते हैं. ओके, सो हियर वी विल यूज़ इट. सो हियर we can say we have also major land in bigas, like 1 hectare is equal to 100 square meter. कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लैंड को मेजर करने के लिए हम बिगास के अकॉर्डिंग जो है इसे मेजर करते हैं. वी कैन गो टू द मल्टीपल क्रॉपिंग. साल भर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अलग अलग तरीके से हम उसमें अलग अलग सीज़न, अकॉर्डिंग टू सीज़न वी कैन हैव जो है अलग अलग क्रॉप्स को हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं. सपोज़ सीज़न के अकॉर्डिंग फसलों को बोया जाए, सो दैट वुड बी वन वे टू यूटिलाइज लैंड, लाइक रबी क्रॉप, खरीफ एट्सेट्रा. सो नेक्स्ट इज़ यूजिंग गुड फर्टिलाइज़र. और दूसरा हम उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि गुड काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करके. ओके, सो नेक्स्ट इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स होते हैं, जनरेशन वाइज जो होते हैं कि लैंड क्या हो जाते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि लैंड का जो पार्ट है वो एक लोकल फार्मिंग के लिए ही यूज़ हो पाता है, एक कमर्शियल फार्मिंग के लिए वो यूज़ नहीं हो पाता है. सो इन दिस केस जो है हमारी जो फार्मिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी नीड टू सस्टेन द लैंड, कि हम किस तरीके से लैंड को क्या करें, सस्टेन करें. We need to check on the chemical fertilizers used in field, because there are fertilizers which can harm the wildlife, the kind of plants. We can go through the traditional farming, like cow dung को हम use कर लें, ठीक है, use after use biogas. The highest consumptions of fertilizer recorded in पंजाब. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो फर्टिलाइज़र कंजम्पशंस है जिसका यूज़ किया जाता है वो पंजाब है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर भी किया जाता है कमर्शियल लेवल पे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेबर. अब दूसरी अगर हम बात करें लेबर की, सो अ काइंड ऑफ लेबर के लिए अगर बात की जाए तो अबंडेंट मोस्ट ऑफ द लेबर इज़ लैंडलेस फॉर क्रॉपिंग सीजन. क्योंकि बहुत सारे लेबर ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती है. तो इन दिस टाइम एग्रीकल्चर वी रिक्वायर वेरी सीजनल लेबर. सो इट्स अ काइंड ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट वी कैन गिव. तो जो लेबर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट उनको दे सकते हैं, एक तरीके से उनको काम दे सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लैंड हैं. It requires very hard work and manual inputs. So nowadays you have tractors for plugging, and harvester for harvesting, and threshers for threshing. So through this labor gets wages, salary can be form of different kinds of form. We can see उनको कैश हम दे सकते हैं, इन मनी उनको wages दे सकते हैं, और kind means something useful for labors, and third is meal. It could be in form of meal. So main problem in India is problem जो यहाँ पे मेन होता है with landless farm laborer
who do not own the land and they are employ on the seasonal basis और डेली बेसिस, ठीक है। वो एम्प्लॉय होते हैं, क्यों? क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है इनके साथ कि उनके पास अपना कोई अपना लैंड नहीं हो सकता है, उनका मीन्स दे कैन नॉट ओन एनी लैंड, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग। सो नाउ द नेक्स्ट इज़ द फिज़िकल कैपिटल। अब यहाँ पे अगर हम फिज़िकल कैपिटल की अगर बात करें, सो एज वी सेड द फिज़िकल कैपिटल इज़ आइदर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड, इफ वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने बात करी थी कि जिसमें हम सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो ईयर वाइज जो है उसका क्या होता जाता है, यूज़ होता जाता है। So this book you have to read very carefully because I'm not explaining word to word here, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको समझा रही हूँ। सो जहाँ पे हमने बात करी कि फिक्स्ड कैपिटल की, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर, यहाँ पे फार्मर्स की भी अलग अलग कैटेगरी दी गई है। यहाँ पे मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं। तो यहाँ पे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं कैन डेफिनेटली अफोर्ड द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो उनको फ़ायदा होता है, तो उनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे। एंड स्मॉल फार्मर्स हैज़ टू बोरो, क्या करते हैं वो लोन ले करके, बिकॉज दे हैव सेविंग्स, जो इनके पास सेविंग्स होती नहीं है मनी, तो उनको लोन लेना पड़ता है। एंड फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, और ये मेनली कहाँ से लेते हैं लोन, बोरो कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स इन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये लोन लेते हैं। अप्रॉक्स 80% ऑफ टोटल फार्मर नाउ वर्क्स एज अ स्मॉल फार्मर्स, 80% ऐसे फार्मर्स हैं जो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में काम करते हैं। So now government is undertaking measures to reduce the rate of interest, and the government itself is opening the schemes which has less interest इंस्टेड ऑफ हाई इंटरेस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने खुद से बहुत सारे जो है स्कीम्स इनके लिए बनाई हैं, जिससे कि वो इनको लोन प्रोवाइड करते हैं और कम इंटरेस्ट में। सो एक बार जब फार्मर्स जो है अपनी फसलों को बेचते हैं, तो उसमें से जो कुछ भी पैसे मिलते हैं या फिर बचते हैं, वो उन्हें आगे सीज़न में उनको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने में लगाते हैं, क्योंकि इफ़ दे हैव गुड प्रॉफिट, तो उनमें से कुछ परसेंट उनका बच जाता है और कुछ परसेंट वो आगे जाके इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो बचे हुए, जो उनके पास जो भी बचा हुआ जो उनके पास जो अमाउंट रहता है एज अ लोन, जो है उन्हें उनके हाई इंटरेस्ट में उन्हें चुकाना होता है। जबकि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पूरे पैसे जो होते हैं वो बच जाते हैं, पूरा प्रॉफिट उनके पास होता है, और इसी बचे हुए पैसे से वो नेक्स्ट अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो यूज़ करते हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल का यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से, जिससे उनकी खेती और ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। नाउ देर आर सम नॉन फार्म एक्टिविटी। अब इसके अलावा इन एक और एक्टिविटी हैं जो विलेजेस में होती है। यू कैन सी इन दिस विलेज ऑल्सो, यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन दिस चैप्टर पालमपुर में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलर इन विलेज है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाउएवर इट अकाउंट्स 24% टोटल एक्टिविटीज़ इन विलेज। इट इज़ मेनली आइदर डेयरी टू फीड द बफेलो विद ग्रास, ज्वार, बाजरा। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, छोटे उद्योग किए जा रहे हैं, लाइक खादी ग्राम उद्योग वगैरह चलाए जा रहे हैं गांव में। देयर कैन बी स्मॉल शॉप्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स ऑल्सो, छोटी मोटी दुकानें खोल करके वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं। So you can see here, this is the topic which has mentioned here, dairy, the other common activities है। यहाँ पे ये फार्म, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होंगी, ओके। And then you can see an example of small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे जो हैं स्मॉल शॉप्स खोले गए हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स खोले गए हैं। एंड people can also be involved in transport also. Okay, this is the fourth point, transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to राईगंज। तो यहाँ पे कनेक्शन है पालमपुर विलेज से, बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जो उससे कनेक्टेड हैं। तो रिक्शा वाले हैं,
टांगे वाले हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स हैं, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बुगीज़, द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो इनमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाला वर्क है, एज ए ड्राइवर जो है वो वर्क कर रहे हैं। सो थ्रू दिस क्या हो रहा है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इकोनॉमी रोटेट हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी को रोटेट किया जा रहा है। सो देयर आर सम फैक्टर्स जो कि इस चैप्टर में थ्रू द स्टोरी जो है यहाँ पे एक समझाने की पूरी कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो है इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सो ओवरऑल students, you have to read this chapter very carefully, word to word, and topic wise you have to read it और इसे समझने की कोशिश करेगा। एंड एट लास्ट इट हैज़ गिवन हियर समरी ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन सी हियर लास्ट में आपके पूरी की पूरी एक से समराइज़ किया गया है। मैंने भी एक तरीके से आपको समराइज़ ही किया है चैप्टर्स को, बट आपको इसे बहुत डीपली इसे रीडिंग करिएगा एंड मेक सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।